کہانی کا آغاز ہوا کراچی کے ایک پسماندہ علاقے میں۔ روشنیوں کے شہر میں ایسی ہزاروں تاریخی گلیاں ہیں جہاں ایسی تاریخیاں بہت عام ہیں۔ دلشاد نگر بھی ایسی ہی علاقوں میں سے ایک تھا جہاں ایسی تنگ اور تاریک گلیوں کی بھرمار تھی۔ کب کس پہر ان تاریک گلیوں میں دو گروپ آپس میں بھڑ جائیں کوئی بھروسہ نہ تھا۔ بوری بند لاشیں روز کا معمول تھی۔ یہاں دن دہاڑے ماحول گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھتا۔ کسی کو چندہ فکر نہ تھی۔ رہائشی فقط بچوں کو پکڑ کر گھر میں بند کر دیتی اور کچھ گھنٹوں بعد سناٹا ہوتی معمولات زندگی پھر سے رواں دواں۔ حیدر خان بھی ان تنگ تاریک گلیوں میں پل کر جوان ہوا تھا۔ 8ویں پاس حیدر کی عمر اب 30 ہو چکی تھی۔ اس کی رنگت جو کبھی صاف ہوا کرتی تھی آج جل چکی تھی۔ بال آگے سے اڑ چکے تھے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی، چہرے پر جا بجا نشانات تھے۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھا، اس کی ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، ایک ہاتھ کام کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ ایسا کب ہوا، کیسے ہوا، یہ ایک الگ داستان ہے جس کو سننے کے لیے ایک سخت جگر چاہیے۔ دلشاد نگر فقط دلشاد نگر کے باہر والوں کے لیے ایک دل لرز دینے والا علاقہ تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کی بڑی وجہ تھی کراچی پر 70 سالوں سے کبھی ایم کیو ایم تو کبھی پی پی کا غلبہ رہا، اور ایم کیو ایم آج تو کراچی میں تقریباً اپنا اثر رسوخ کھو چکی ہے، لیکن آج سے 10-15 سال پیچھے جائیں تو وہ کراچی کی کرتا دھرتا تھی۔ شروع سے کراچی کے کچھ حصے پی پی اور کچھ ایم کیو ایم کے پاس رہے ہیں۔ اختلافات اتنے تھے کہ آئے روز ہنگامے، فائرنگ اور واقعات عام بات تھی۔ کچھ علاقے ایسے بھی تھے جہاں پر آدھا حصہ پی پی کا تو آدھا ایم کیو ایم کا ہوا کرتا تھا۔ اصل ہنگامے اور مار دھاڑ خاص طور پر انہی علاقوں میں ہوا کرتی تھی۔ دلشاد نگر بھی ایسی ہی علاقے میں سے ایک تھا جہاں ایک طرف ایم کیو ایم کے گروپ تھے تو دوسری طرف پی پی کے لوگ اس طرح نہیں جا سکتے تھے، ایم کیو ایم کے لوگوں اس طرف۔ کراچی کے خطرناک ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ دلشاد نگر تھا جہاں جانے کے نام سے لوگ کانپ اٹھتے تھے۔ یہاں ہر جرم کیا جاتا تھا، چوری چکاری عام تھی، نشے کے اڈے ہر گلی میں موجود تھے۔ پوش علاقوں کے رئیس رات کے آخری پہر یہاں آ کر نشہ کرتے تھے۔ یہاں ہر گروپ کا ایک سربراہ ہوا کرتا تھا جن پر ہاتھ ڈالنے سے پولیس تک کتراتی تھی۔ نشہ سپلائرز اسی علاقے کے نوجوان ہوا کرتے جنہیں پولیس ان کے سربراہ کے نام سن کر ہی چھوڑ دیا کرتی، کیونکہ پولیس کا اپنا کمیشن ان گینگز کے لوگوں سے جڑا ہوا تھا۔ حیدر خان بھی ایسی ہی گینگ کا ایک اہم کارندہ تھا۔ 30 سال خوبرو نوجوان نادر پنچولی کا خاص لڑکا تھا۔ خصوصیت یہ تھی کہ یہ بہادر ہونے کے ساتھ چالاک اور ہوشیار لڑکا تھا۔ نادر پنچولی کا قریبی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے میں بھی خاصی اہمیت رکھتا تھا۔ وہ جب چاہتا کسی سے کوئی بھی کام لے لیتا۔ اس کے پاس ایک ہیوی بائک تھی جس کی پشت پر پنچولی گینگ اجلی حرفوں میں درج تھا۔ اسے علاقے کی پولیس پہچانتی تھی اور کام آسان۔ کام کیا تھا؟ ڈرگز سپلائی، اغوا برائے تاوان، لوگوں کو ڈرا دھمکا کر رکھنا، یہ اس کے پیشے ور جرائم تھے جنہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتا تھا۔ لیکن یہی پر بس نہیں تھی، اس کے کچھ اور بھی سرگرمیاں تھیں، اور وہ تھی اس کی رنگین مزاجی۔ بھاگپن میں ہی اپنی مثال آپ تھا۔ ماں باپ کون تھے کوئی نہیں جانتا تھا، وہ بچپن سے اسی علاقے میں دیکھا گیا تھا۔ سب اسے نادر پنچولی کے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے جانتے تھے۔ ان کی شکلوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ نادر پنچولی گہری سیاہ رنگت، سانڈ جیسے جسم، چھوٹی چھوٹی آنکھوں والا 45 سالہ مرد تھا، جبکہ وہ ایک خوبرو نوجوان تھا، صاف چمکتی رنگت، بڑی بڑی آنکھوں والا صحت مند نوجوان۔ علاقے کی ہر وہ لڑکی جسے وہ پسند کر لیتا اس سے دوستی کر لیتی تھی۔ کسی کو تو کیا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس نے کتنی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھے تھے۔ اس کا حساب اس نے کبھی رکھا ہی نہیں۔ اس وقت وہ اپنی مخصوص جھگی نما جگہ پر موجود تھا۔ یوں تو اس کے پاس ایک فلیٹ تھا
जो दिलशाद नगर के ज़रा फासले पर मौजूद था। इसी बिल्डिंग में नादिर पंचोली का अपार्टमेंट भी मौजूद था, जिसमें वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहा करता था। 13 साल की उम्र तक वो नादिर पंचोली के साथ ही रहा था, लेकिन उसकी शादी के बाद उसने अलग रहना शुरू कर दिया था। पैसे की कमी नहीं थी, वो ही तो था जो नादिर पंचोली को कमा कर दिया करता था। भत्ता लेना चाहता तो पहली पर्ची पर ही उसकी जेबें भर दी जाती थी, क्योंकि वो इंतहा का जालिम और बदलिहाज था। गलीत गालियों में तो उसने जैसे PhD कर रखी थी। माँ बहन की गालियाँ उसके लिए एक आम बात थी। वो बाद में फायर पहले किया करता था। यही वजह थी कि सारा इलाका उससे दब कर रहता था। बाकी गैंग के कारिंदों से तो इलाका मकीन मजाक और बातचीत कर लिया करते थे, लेकिन हैदर से सब दूर दूर ही रहा करते थे, क्योंकि वो इंसान के रूप में जानवर जैसा था। औरत उसके लिए फ़िकत हौस पूरी करने का सामान थी। वो इससे ज़्यादा के तलक पर यकीन रखने का हामिल नहीं था। हैदर, तुझे लाला ने जगह पर बुलाया है। वो चिटस है ना, उसको पकड़ कर लाए हैं आज। कड़क मार मारनी है। साला 24 दिन ऊपर हो गया है, पैसा नहीं दिया, माल बराबर लेकर जाता है। मोहसिन ने उसे इतला दी। हाय, आज तो बड़ा मज़ा आने वाला है। बड़े दिन हो गए हाथ में गर्मी नहीं चली। साले की आज सारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। अभी वो बोला ही था जब उसका फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर रोज़ी नाम चमक रहा था। हाँ बोल जानू, क्या बात है? उसके आँख दबाते मोहसिन की तरफ देखकर कहा, आप आए नहीं, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। दूसरी तरफ से नस्वान सी आवाज़ आई, अरे मैं तो भूल गया यार जानू, माफ़ कर दे, कल मिलते हैं, चल फ़ोन रख, बात करता हूँ आके। हैदर ने फ़ोन रखा। ये वही है ना, बासद की छोटी बहन? मोहसिन और वो कहते हुए बाहर आए। अरे छोटी है या बड़ी, मेरे को क्या लेना देना। हाँ, माल बढ़िया है वैसे। बासत से हंसता वो अपनी बाइक की जाने बढ़ने लगा। मोहसिन भी हंसता वो उसके साथ बाइक पर बैठा और वो दोनों वहाँ से अड्डे की तरफ निकल गए। हैदर और मोहसिन अड्डे पर पहुंचे तो वहाँ खूब भीड़ थी। गैंग के ज़्यादातर लड़के वही मौजूद थे। ऐसा सिर्फ तब होता था जब कोई पंछी पकड़ में आता था, जैसे कि आज चट्टा नामी छोटा ड्रग्स डीलर हाथ आ गया था। अड्डे का मनाजर ही खौफजदा कर देने को काफ़ी था। हाल में बंद रंग चटाई बिछी हुई थी। दीवारों की असल रंगत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। दीवारों पर मुख्तलिफ नारे लिखे हुए थे। एक तरफ जर्द बल्ब था जिसकी रोशनी हाल को रोशन करने में नाकाफ़ी थी। हाल कुदर वसी था। बाएं जानिब एक कोठरी थी जहाँ अक्सर लोगों को ला कर रखा जाता था और टॉर्चर किया जाता था। हैदर को आता देख तमाम लड़के एक तरफ हो गए थे। कुछ ने सलाम दागा तो कोई चुपचाप खड़ा रहा। किधर है वो चट्टा, लेकर आओ इधर। हैदर ने एक कम उम्र लड़के से हिंटर लेते हुए कहा। इसी पल 2 लड़के कोठरी की तरफ गए। वापसी पर एक मंजी सा मर्द उनके साथ था, जो मुसलसल खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। हैदर, उस्ताद ये तो जुल्म है उस्ताद, मैंने तो बस 2 दिन मांगे थे। वो खौफजदा सा बोला। क्यों, माल बराबर जा रहा है कि नहीं? हैदर ने एक अबरू उचकाकर दाएं जानिब खड़े मोहसिन से तादीद चाही। मोहसिन ने साबत में गर्दन हिलाई। उस्ताद, मेरे बच्चे का ऑपरेशन था। मैं बोला 2 दिन देने को, कसम से बस 2 दिन सारा पैसा चुका दूंगा। वो हाथ जोड़ते हुए बोला। क्यों उड़ाए क्यों? अरे 2 दिन में आसमान से पैसा बरसेगा। जो माल तू ले जा रहा है उसका पैसा किधर गया सारा? कितना पैसा लगा ऑपरेशन में, बता ओए उसको। मोहसिन, हैदर ने आंखें निकालते हुए दर्शनशी कहा। 2.5-3 लाख ऑपरेशन का लगा होगा। 7 लाख रुपए का माल था। बाकी पैसे किधर गया? मोहसिन ने उसके बाल पकड़े हुए कहा। ये नहीं साला, मेरे से शतानपति करेगा। तेरी मैं चमड़ी में नमक न भर दूं साले। हैदर ने जोरदार हंटर उसकी कमर पर सीधा करते हुए कहा। एक जोरदार चीख हाल में गूंजी। तमाम लड़के पीछे होने लगे। हैदर बेजरिए हंटर बरसा रहा था। हमसे हराम खोरी है साले, फिर आगे से जबान लड़ाता है। तेरी माँ के यार हैं हम हैं। वो गंदी गालियाँ बकते हुए उस पर बेजरिए हैंटर बरसा रहा था। एक तरफ से मोहसिन ने उसके बाल दबोच रखे थे, दूसरी तरफ से दूसरा लड़का उसका रास्ता रोके खड़ा था। इस शख्स की दर्दनाक चीखें अड्डे की
दरों दीवारों से टकरा रही थी, यहाँ तक कि वो बेदम होकर जमीन पर गिरा। हैदर का भी सांस फूल चुका था। हंटर एक तरफ फेंका तो एक लड़का पानी लिए दौड़ता हुआ उसके पास आया। जा रहा हूँ पंचोली भाई के पास, उसको इसके घर फेंक कर आओ। अगले हफ्ते तक अगर पैसा ना लौटाए दोबारा उठा कर ले आना। दूसरी दफा मैं हंटर नहीं, मेरा पिस्तौल चलेगा, बता दे इसको मोहसिन। हैदर पानी का गिलास एक को पकड़ाता बाहर की जानिब बढ़ गया। इसकी सफ़ेद शर्ट पर जगह जगह खून की बारीक बूंदें उड़कर आ लगी थी। चिट्टा नामी शख्स अभी भी जमीन पर पड़ा कढ़ा रहा था। उसके जिस्म से जगह जगह से खून रस रहा था। वो रोशन अपार्टमेंट के दाएं पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी करता सीढ़ी की जाने बढ़ा। दूसरी मंजिल पर नादिर पंचोली का आलीशान घर था, जबकि हैदर 7वीं मंजिल पर रहता था। उसे उससे पहले नादिर पंचोली के घर जाकर रिपोर्ट देनी थी, फिर घर जाकर कपड़े बदलने का सोच रहा था। अभी वो पहली मंजिल पर ही पहुंचा था जब उसकी निगाह राहदारी में सामान के जानिब एक भारी भरकम बैग खींचती नाजुक नदाम लड़की पर पड़ी। यूं तो वो पहली मंजिल की तमाम लड़कियों को जानता था। उसे मालूम था किस फ्लैट में कितनी लड़कियां थीं, कौन किस कद की थी, किसका वजन कुछ ज्यादा था, लेकिन सामने मौजूद लड़की इनमें से की नहीं लग रही थी। सरमई अबाया पहने लड़की का कद दराज था। तजस्सुस ने हैदर के गिर्द घेरा तंग किया। उसके अंदर के शैतान ने सर उठाया। वो मदद के बहाने वो इसी जाने बढ़ने लगा। उसे ये भी होश नहीं रहा कि उसकी सफ़ेद शर्ट पर खून के छींटे हैं। सुने, हैदर ने कुछ फासले पर रुक कर आवाज़ दी। लड़की चौंक कर पलटी। गंदमी रंगत और दिलकश नक्कूश की हामिल लड़की ने अनजान निगाहों से उसकी तरफ देखा तो चिड़िया वाकई यहाँ नहीं है। दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया, कोई मदद कर दूं? उसने चेहरे पर शराफत सजाते हुए नरम लहजे में सवाल किया। जी शुक्रिया, बस ये बैग ज़रा वहाँ रख दें। लड़की ने राहदारी पर मौजूद आखिरी फ्लैट की तरफ इशारा करते हुए कहा। लाएं दीजिए, वैसे आपको क्या ज़रूरत थी इतने वजनी बैग को उठाने की? उसने एक ही हाथ से बैग उठाकर कहा। लड़की उसके हम कदम चल रही थी। अम्मी ने तो कहा भी कि रक्शे वाले से कह दो, लेकिन मुझे लगा मैं उठा लूँगी, मगर भारी है बहुत, वो बोली। उसके लहजे में बच्चों की सी मासूमियत थी और हैदर ऐसी मासूमियत की बर्बादी में माहिर था। अच्छा, आप यहाँ नई आई हैं? जी, कल ही शिफ्ट हुए हैं यहाँ। वैसे ये आपकी शर्ट पर ब्लड है क्या? लड़की ने उसकी शर्ट को देखते हुए सवाल किया। रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया था, उसकी मदद करते हुए लग गया, हैदर ने मासूमियत से कहा और बैग खुले गेट के अंदर रख दिया। बहुत शुक्रिया आपका। और आप भी यहाँ यहीं रहते हैं क्या? लड़की ने सवाल किया। शुक्रिया की कोई बात नहीं जी, मैं यहीं रहता हूँ 7वीं मंजिल पर। वैसे आपका नाम क्या है? हैदर ने मुस्कुराते हुए पूछा। खजरा, वो कहकर अंदर दाखिल हो गई। हैदर मुस्कुराकर पलट गया। साली मतलब पूरा होते ही अंदर घुस गई। चाय पानी ही पूछ लेती, चाय पानी छोड़ो, नाम ही पूछ लेती मेरा। वो बुड़बुड़ाता हुआ तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। कौन था गेट पर? उधेड़ उमर राबिया खातून ने खजरा के अंदर दाखिल होते ही सवाल किया। इसी बिल्डिंग का लड़का था, बैग गेट तक छोड़ गया है, खजरा ने कहा। ज़्यादा किसी से फजूल बात करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। ये इलाका और यहाँ के लोग कुछ ठीक नहीं है, समझी? राबिया खातून ने खबरदार किया। जी अम्मी, खजरा कहती हुई अंदर की जानिब बढ़ गई। नादर पंचोली अपने वसी लॉन्च में टांगे फैलाए बैठा था। करीब ही हैदर सिगरेट जलाए गहरे कष्ट लगा रहा था। घर कुदरत साफ सुथरी हालत में था। फर्नीचर कीमती और मयारी था, साफ सुथरे पर्दे, कीमती सोफे। घर काफ़ी कशीदा और पुरताश था। चटा को निपटा लिया? हाँ भाई, ऐसा वैसा चमड़ी उधेड़ कर आया हूँ साले की, वो लापरवाही से बोला। शाबाश मेरा शेर। माल पूरा है या मंगवाना है? नादर ने पूछा। मंगवा दो तो और अच्छा है, वैसे अभी पड़ा है काफ़ी सारा। अच्छा, तेरे को चाहे पैसा वैसा या है? अभी है भाई, तुम टेंशन नहीं लो, बस इस लफड़े को निपटाने की करो। नया ऑफिसर आ रहा है पिछवाड़े में, उसको संभालने की करो। मैं ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा आराम करूँगा, अड्डे पर नहीं आऊँगा रात को। क्यों भाई, क्या बात है? आज फिर किसी चिड़िया के साथ गुजारनी है? नादर जन्नती कह के लगाते हुए पूछने लगा। भाई तुम तो फिर जानते हो अपने शेर को। हैदर खबासत से आंख दबाता उठ गया। पीछे नादर खलक फाड़
फाड़ कह के लगा रहा था। उसके फ्लैट की हालत बड़ी ख़राब थी। लॉन्च के सोफे पर बियर और शराब की बोतलें, सिगरेट के पैकेट और स्ट्रीट फूड के डब्बे वगैरह पड़े थे। कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भी जगह जगह बिखरी हुई थी। वो लॉन्च की हालत को नज़रअंदाज करता कमरे में आया। जीन्स के साथ उड़सी नए मॉडल की 9mm पिस्तौल उसने पलंग पर फेंकी और शर्ट उतारता गुसल खाने की जानिब बढ़ गया। कमरे की हालत भी लॉन्च से कुछ कम ना थी। तकिए इधर उधर बिखरे पड़े थे। बेड के दाएं जानिब एक हुक्का बेढंगेपन से रखा हुआ था। साइड टेबल पर आधी जली सिगरेटें थीं। बाएं जानिब सोफों के साथ पड़ी मेज पर लेज चिप्स के कुछ खाली और कुछ भरे पैकेट रखे थे। जमीन पर कोल्ड ड्रिंक की आधी भरी बोतलें ऊंधे मुंह पड़ी थी। अभी वो गुस्ल खाने से निकला ही था जब दरवाज़ा बजने लगा। उसने अलमारी खोलकर एक शर्ट निकाली और पहनता हुआ बाहर आया। बाहर आकर उसने गेट खोला तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी मुस्कुरा रही थी। हाय डार्लिंग, लड़की ने आगे बढ़कर उसका गाल चूमते हुए कहा और अंदर दाखिल हुई। हाय, अचानक कैसे? हैदर जो बिस्मा को टाइम दिए बैठा था रुबाब को देखकर उलझ गया। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? रुबाब सोफों की जाने बढ़ती उठला कर बोली, मेरी जान तुम जैसी किसी को अच्छी नहीं लगेगी। वो उसके दिलकश सरापे पर निगाह डालते हुए बोला। वो स्याह चुस्त शर्ट और नीली जीन्स में मुबलिस थी। हार्ट लग रही हो बेबी, हैदर ने आंख मारते हुए कहा। रुबाब खिलखिलाकर हंस दी। हार्ट हूँ, हार्ट नहीं लगूंगी तो क्या लगूंगी? वैसे तुमने ये हाल क्या बना रखा है फ्लैट का? रुबाब ने इर्द गिर्द निगाह डालते हुए कहा। क्या करूँ, कोई मासी टिकती ही नहीं है। ये वाली भी भाग गई। हैदर लापरवाही से बोला, तुम आ ही गई हो तो कर दो सफाई, मैं ज़रा रेडी होकर आता हूँ, फिर हुक्का जलाएंगे। हैदर कहते हुए कमरे की जाने बढ़ गया। रुबाब कड़वे मुंह बनाती अपना पर्स रखकर उठ खड़ी हुई। भला उसे कहाँ पसंद था ये काम? वो तो हैदर के पास इसके पैसे और पार्टीज के लिए आया करती थी, लेकिन वो इसके मिजाज से भी खूब वाकिफ थी। वो कह गया था तो उसे करना था, वरना उसका गुस्सा बर्दाश्त करना कहाँ आसान था। हाँ शोना, आज का मिलना कैंसिल कर देते हैं, मुझे ज़रा काम है, कल का रख लें। हैदर खुद पर परफ्यूम छिड़कता फ़ोन पर कह रहा था, परसों भी यही कहा था तूने हरामी। दूसरी तरफ बिस्मा चिढ़कर बोली, अबे ओ, काम है तो क्या करूं, छोड़कर आ जाऊं तेरे पास? बकवास करती है आगे से। हैदर भड़क कर बोला, साले हरामी, साहब बोल दे, वो लाइनर एरिया वाली खबीस औरत आ गई है तेरे घर। बिस्मा ने गुस्से से कहा, हाँ आ गई है तो क्या कर लेगी तू? तेरे को कोई मसला है? हैदर ने सर्द महरी से पूछा। गरक हो जा, अब मत आइयो मेरे पास, उसी के साथ रह चल, मैं रख रही हूँ फोन। अभी मैंने चुड़ैल को तेरी बिल्डिंग में घुसते देखा है। बिस्मा गुस्से से बोली, अभी और निकल, ज्यादा दिमाग में मत लग, रख फोन, मत आइयो की बच्ची, तेरे लिए मेरी सांस थोड़ी निकल रही है, कमी है क्या मुझे तुझसे? अच्छी अच्छी पैरों में पड़ी रहती हैं। हैदर हकारत से कहता फोन बंद कर गया। और यह हकीकत भी थी, इसके पास लड़कियों की कमी वाकई नहीं थी। एक से बढ़कर एक उसका वक्त रंगीन करने को तैयार रहती थी। उसका फ़ोन फिर बजने लगा था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। फ़ोन पलंग पर फेंकते उसने करीब रखा हुक्का उठाया और कमरे से निकल गया। आज की शब रंगीनी सामान मुकम्मल था। रुबाब हाल की हालत संवार चुकी थी। हैदर एक मैंने खेजी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालता किचन की तरफ चला आया, जिसका इस्तेमाल वो फ़कत हुक्का जलाने के लिए ही करता था। जानब, मैं हुक्का जला रहा हूँ, तुम फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक्स निकाल लो, हैदर ने उससे कहा। अच्छा ओके। अब पता है शोना, कल मैं एट्रियम मॉल गई, वहाँ एक वॉच देखी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, लेकिन 45,000। डोंट वरी, ले लेना। हैदर लापरवाही से कहता फ्लेम जलाने लगा। हाय, थैंक्स यू सो मच माई लव। रुबाब खुशी से निहाल होती बोली। हैदर फिकत मुस्कुरा दिया। उसे रुबाब की इतने दिन बाद आमद का मकसद एक सेकंड से भी कम वक्त में समझ आ गया था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसके तमाम तलकात कुछ लो और कुछ दो के नज़रिए पर कायम थे। उसे इनकी जवानी से मतलब था और इन्हें उसके पैसों से। सुबह का आगाज मुसलसल बजते फ़ोन से हुई। वो आंखें रगड़ता उठ बैठा। घड़ी 7:30 बजा रही थी। अमूमन उसकी सुबह 1 बजे से पहले नहीं होती थी। उस वक्त बजते फ़ोन ने उसका मूड बुरी तरह बिगाड़ दिया था। फ़ोन दोबारा बजने लगा। उसने गालियां देते हुए फ़ोन कान से लगाया। हाँ क्या है, क्या मौत पड़ गई है? वो बिगड़े मिजाज वो बिगड़े मिजाज के साथ से पूछने लगा।
जब्बू को किसी ने गोली मार दी है, फड्डा हो गया है अड्डे में, तू जल्दी आ। दूसरी तरफ मोहसिन परेशानी से बोला, किससे हुआ है फड्डा? जब्बू कैसा है? वो पलंग से उतरते हुए पूछने लगा। वो बिल्कुल पुरसुकून था क्योंकि ये रोज़ का मामूल था और यूं भी वो खासा बेदीदा वाक़या हुआ था। उसे किसी के मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तू आ, तुझे बताता हूँ, मोहसिन ने कहते हुए फ़ोन बंद कर दिया। हैदर सर बाल सहलाता गुसल खाने में घुस गया। गुसल खाने से निकलकर उसने बाल बनाए और जूते पहनकर अपनी पिस्तौल में गोलियां भरने लगा। तेजी से सीढ़ियां उतरता वो नीचे की जानिब आ रहा था। पहली मंजिल पर पहुंचा ही था जब सामने से उसे वही लड़की बैग कंधों पर डाले स्कार्फ लपेटे सीढ़ियों की जानिब आती दिखाई दी। दफाता उसकी निगाह हैदर पर पड़ी। उसके चेहरे पर शनासाई के तासुर जाहिर हुए। वो उसे पहचान गई थी। हैदर उसे देखकर मुस्कुराया। वो भी हल्का सा मुस्कुराकर तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी। नाम क्या है तुम्हारा? हैदर भी साथ ही सीढ़ियां उतर रहा था। खजरा वो उलझन अमेज निगाह उस पर डालकर बोली, कल ही तो बताया था उसने नाम। हैदर उसके चेहरे पर निगाहें गाड़े रहा। और ओ हाँ, याद आया, तुम तो बता चुकी थी, मैं हैदर हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। निगाहें हुंस उसके चेहरे पर थी। अच्छा खजरा? खजरा सादा अंदाज में कहती सर झुका गई। वो उसकी निगाहों से खाइफ हो रही थी। तेजी से सीढ़ियां उतरती बिल्डिंग के बैरूनी गेट की जाने बढ़ गई। हैदर वहीं खड़ा उसे देखता रहा। बिल्डिंग के गेट के ऐन सामने एक रक्षा खड़ा था। खुजरा बैग संभालती उसमें सवार हुई और रक्षा आगे बढ़ गया। हैदर पुरसोच अंदाज में अपनी दाढ़ी खुजाता पार्किंग की तरफ बढ़ गया। मुझे नहीं पता, बस यूं ही मुझे लगा, देख रहा था बस गौर से। वो मुंह बनाकर बोली, अच्छा कैसा है दिखने में? परी ने मुतजस्सिस हो रही थी। उसकी बात पर खजरा हंस दी। परी ने चिढ़कर उसे घूरा। बता ना कैसा है? वो उसका हाथ खींचती हुए बोली, ब्राउन आंखें हैं और इतनी बड़ी हाइट है। खजरा ने मुस्कुराहट दबाई। बस नाम ही बताया और कुछ नहीं कहा। परी ने एक और सवाल किया, और कुछ क्यों कहेगा? तुझे तो एक बात बता दूं तो रिश्ता ही जोड़ने लगती है। मैं सिर्फ बता रही थी कि वो दिखा और मुझे देख रहा था मुस्कुराकर। खजरा चिढ़कर बोली। परी हंसी खिलखिलाकर हंस दी। वैसे यार, सुना है वो इलाका खतरनाक है। नादर पंचोली नाम सुना है ना? याद है जो 1 साल पहले वीडियो आई थी, एक आदमी का सर काट कर उसने फुटबॉल खेल रहे थे इसमें। ओए चुप, मैं नहीं देखती ऐसी खतरनाक चीजें। खजरा ने झुरझुरी ली। सुन तो, वही नादर पंचोली और उसका छोटा भाई, उफ बहुत खतरनाक है। तुम लोगों ने वहां घर क्यों लिया वैसे? तुझे तो पता है कितना इमरजेंसी में हमें घर खाली करना पड़ा, और इतनी कीमत में सिर्फ यही घर मिला है। और वैसे भी बिल्डिंग इस तरफ है, वो इलाका तो सामने है, हम उस इलाके में थोड़ी रहते हैं। वो दिलशाद नगर कहलाता है। दिलशाद नगर के आगे रोशन नगर शुरू होता है। रोशन अपार्टमेंट्स में लिया है घर। हाँ, लेकिन जब कुछ होता है ना बेटा जानी, दस्ती बम और गोलियां इधर आकर ही गिरती हैं। पिछले दिनों जवान काउंटर हुआ था रोशन नगर में। कितनी फायरिंग हुई थी? परी बोली। कुछ नहीं होता, स्टेट एजेंट ने बताया है ये जगह बिल्कुल सेफ है। बिल्डिंग में सारे पढ़े लिखे और अच्छे लोग रहते हैं। खजरा ने तसल्ली दी। हाँ, जैसे कि तुम्हारा वो बैग उठाने वाला हैंडसम लड़का। परी फिर उसी को याद कर बैठी। खजरा ने झुक कर उसे चुत लगाई। इसीलिए मैं क्लास में टीचर दाखिल हुई और वो दोनों बातें छोड़कर किताबें खोलने लगी। अड्डे में इस वक्त खूब भीड़ थी। गैंग के तमाम लड़के नादर पंचोली समेत वहीं मौजूद थे। जबरान और जब्बू को अस्पताल ले जाया जा चुका था। फर्श पर खून मौजूद था। हैदर सर पर रुमाल बांधता अंदर दाखिल हुआ। हैदर भाई आ गया। एक लड़का उसे देखकर पुरजोश हुआ। हैदर तंजिया निगाह सब पर डालता आगे आया। सामने ही नादर पंचोली गुस्से में भरा बैठा था। किस कुत्ते की नस्ल ने यहाँ घुसकर फड्डा डाला है, और तुम लोगों ने बदले में क्या किया? हैदर ने आते ही सबसे सवाल कर डाला। नादर पंचोली अब सोफे की पुष्ट से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। भाई हम सो रहे थे। शाबाश शाबाश। हैदर ने तालियां बजाकर सर साबत में हिलाया। आगे फिर इसने सवालिया अंदाज में मोहसिन को देखा जो खामोशी से सर झुका गया। अबे हराम खोरो, फूटो अब मुंह से। एक दिन मैं अड्डे पर ना आऊं, तुम सब चूड़ियां पहन लेते हो। कौन थे वो खंजीर के तुखम? पिस्तौलें निकालो, उनकी 7 नस्लें कब्र में वाड़ कर आएंगे।
उसकी गरजदार आवाज़ पूरे अड्डे को हिला रही थी। अड्डे के आसपास छोटे-छोटे घरों तक इसकी आवाज़ पहुंच चुकी थी। सब औरतें घरों से अपने बच्चों की तलाश में निकलने लगी। जल्दी तैयारी करो, बाइकें लेकर आओ सब, उसने हुक्म दिया। सब लड़के तेजी से अड्डे से निकलते चले गए। खून की होली शुरू होने में ज़्यादा वक्त नहीं रहा था। औरतें बच्चे भागते हुए घरों को अंदर से ताले लगा रही थीं। खबर आग की तरह फैलने लगी। दुकानें बंद होने लगी। शटर गिरने की आवाज़ हर जगह से आ रही थी। हैदर आंखों में खून लिए अड्डे में टहल रहा था। तेरी ब्लड प्रूफ किधर है? नादर पंचोली उससे पूछा। घर पड़ी है, ऐसे ही चला जाऊंगा, वो लापरवाही से बोला। नादर ने उसे जबरदस्त घूरी डाली। चल वापस घर जा, जैकेट डाल कर वापस आ। इनके अड्डे में घुसने को जा रहा है नंगा। सर पर वो टेन की टोपी डाल सारी तैयारी करके आ, चल जा। नादर ने उसे झटका। वो खामोशी से बाहर निकल आया और बाइक स्टार्ट करने लगा। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गलियां सुनसान पड़ी थी। उसके चेहरे पर महफूज सी मुस्कुराहट छा गई। वो बाइक हवा की तेजी से चलाता वापस रोशन अपार्टमेंट्स में आया। पहली मंजिल की राहदारी में कदम रखते ही उसकी निगाह सामने से आती राबिया खातून पर पड़ी। उसे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो इन्हें देखते ही समझ गया कि वो कौन हो सकती है। उसके लबों पर मैनी खेज मुस्कुराहट ने छप दिखाई। अगली ही पर वो मासूम सी शक्ल बनाकर इनके सामने आया। आंटी, इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? हालात ठीक नहीं है आज यहाँ के। हंगामे फायरिंग होने वाली है। वो परेशान तासर लिए बोला। बेड़ा गर्क हो उस लोगों का। मनूस बुढ़िया, वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया। जानती हूँ बेटा, अभी मेरी पड़ोसन ने बताया कि 2 ग्रुपों में फसाद हो गया है। अब 1-2 रोज़ यहाँ ये हालात रहेंगे। फायरिंग, मार धराड़। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि इसी बिल्डिंग में 2 बड़े गुंडे रहते हैं। मेरी बच्ची कॉलेज गई हुई है, इसी को लेने जा रही हूँ। जाने उसकी वापसी के वक्त तक हालात कैसे हों। वो बुरी तरह डरी हुई लगती थी। हैदर जब्त करके रह गया। इस वक्त तो आपको यहाँ से कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। बाहर सन्नाटा हुआ पड़ा है। मैं छोड़ देता हूँ। कॉलेज किधर है? अरे बड़ी मेहरबानी बेटा, तुम्हारी कॉलेज यही उर्दू बाजार के पास है। वो जल्दी से बोली। उस वक्त उन्हें हैदर किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। अच्छा रुके, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, वो कहकर ऊपर की जाने बढ़ गया। दूसरी मंजिल पर मौजूद नादर पंचोली के घर पर दस्तक देते हुए वो अपने आप में ही मुस्कुरा रहा था। बहुत जल्द ये नई चिड़िया भी मेरी मुट्ठी में कैद होगी, वो सोच रहा था जब दरवाज़ा खुला। क्या हुआ? सब ठीक है भाई? किधर है तुम्हारा? नादर पंचोली की बीवी आसफा सामने खड़ी थी। हाँ ठीक है सब। लाओ गाड़ी की चाबी दो, काम से जा रहा हूँ, उसने कहा। लाती हूँ, कहकर वो अंदर की जानिब गई। इसी पर नन्ना जैन बाहर आया। वो सांवले रंग का पुरकशिश बच्चा नादिर पंचोली का था। चाचू चीज, वो मुस्कुराते हुए नखरीलेपन से बोला। चल अभी तू अंदर जा, रात को ले जाऊंगा घुमाने, चीज भी दिलाऊंगा। वो उसके बाल सहलाकर बोला। भाभी जल्दी करो, देर हो रही है। उसने अंदर झांक कर आवाज़ दी। हाँ आई, आसमा कहती हुई बाहर आई और चाबी से पकड़ाई। हैदर ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते हुए गन जीन से निकालकर आसमा की तरफ बढ़ाई। ये रखो, अभी आकर ले जा रहा हूँ, उसने कहते हुए तेजी से कदम नीचे की जाने बढ़ा दिए। आफसा आफसा आसफा ने तसव्वुफ से सर झटका और बेटे को अंदर लेकर गेट बंद कर दिया। वो चाबी से खेलता नीचे आया तो राबिया खातून उसी के इंतजार में खड़ी थी। वो मुस्कुराया। चले आ जाए, वो कहता नीचे की जाने बढ़ने लगा। अभी वो पार्किंग की तरफ ही आया था जब सामने मोहसिन आता दिखाई दिया। उसने दूर से ही उसे शहादत की उंगली से चुप रहने और वहां से जाने का इशारा किया। मोहसिन ने उलझी निगाह उस पर डाली और अपना रुख दूसरी जानिब करके आगे बढ़ गया। तुम क्या करते हो बेटा? राबिया खातून ने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। हैदर जो खामोशी से गाड़ी चला रहा था उसके सवाल पर चौंका। मेरी एक बेकरी है, वैसे भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ, लेकिन बेकरी को भी देखता हूँ, उसने नफासा से झूठ बोला। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, कब से रहे हो यहाँ? बचपन से यहीं रहता हूँ, वो बामुश्किल बेजारी छुपाता बोला। अच्छा, पड़ोसन बता रही थी इसी बिल्डिंग में रहते हैं नादर और उसका भाई, तुम जानते हो इनको? वो झुझकते हुए पूछने लगी। हैदर ने दिल ही दिल में हंसते हुए लेकिन बाज़ेर संजीदगी से इनकी तरफ देखा। नहीं आंटी, मैं ऐसे लोगों से दूर दूर रहता हूँ। वैसे वो लोग नुकसान नहीं पहुँचाते किसी को, अपने धंधे से मतलब है इनको। बस किसी गैंग से लड़ाई हो जाए तो हंगामा होता है, वरना वो भी आम से इंसान है हमारी तरह। लेकिन मैंने तो सुना है नादर का छोटा भाई बड़ा खतरनाक गैंगस्टर है, कोई लिहाज किए बगैर लोगों को गोलियों से ख़त्म कर देता है। वैसे क्या नाम है उसका? वो सादगी से पूछ रही थी।
اور ان کے वहम गुमान में भी ना था जिस शैतान का जिक्र वो कर रही है वो उनके साथ ही बैठा गाड़ी चला रहा है। चीते के नाम से मशहूर है वो, नाम तो उसका भी शायद हैदर है। हैदर ने बाज़ सादगी से कहा, देखो तो कितना प्यारा नाम है, और अमाल तौबा तौबा, खुदा गरक करे ऐसे लोगों को, शरीफों पर अजाब की सूरत नाजिल है, खुदा नास्त नबूद करे ऐसे लोगों को। हैदर ने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। इसका दिल चाहा एक ही हाथ मारकर इस बुढ़िया का काम तमाम कर दे, लेकिन खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। रबिया खातून हुंस बुड़बुड़ा रही थी। अड्डे के बाहर दर्जनों बाइक्स खड़ी थी जिनके पास पंचोली गैंग्स के लड़के खड़े थे। किसी के हाथ में राइफल थी तो कोई पिस्तौल थामे खड़ा था, हाथों में बंदूक, चेहरों पर रुमाल, वो सब अपने चेहरे छुपाए खड़े थे। इनमें से कोई नहीं जानता था कि आज की लड़ाई में इनमें से कितने लोग वापस आएंगे और कितने मारे जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ दलेरी से खड़े थे। इनमें से ज़्यादातर इसी इलाके के थे जिनके माँ बाप बेबस थे। वो अपने बच्चों को इस जंग में से नहीं रोक सकते थे। कैसे रोकते? पैदा होते ही इस मारधाड़ लड़ाई झगड़ों में रहते रहते यहाँ के बच्चे मौत के खौफ से आज़ाद हो चुके थे। 90% लड़कों की उम्र 20 से ज़्यादा की नहीं थी। इस गैंग का अहम तरीन कारिंदा हैदर खुद सिर्फ 30 साल का था, लेकिन इसमें खौफ नहीं था। ये गैंग वर्स यहाँ के बच्चे की रगों में सराहत कर चुकी थी। बच्चों से पूछने पर इनकी ख्वाहिश गैंगस्टर बनना, गैंगरोस के कमांडर बनना इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन ये लोग अपने काम में माहिर थे। हथियार चलाना, चाकू से वार करना, ये सब एक खेल से ज़्यादा कुछ नहीं था। हैदर भाई किधर रह गया है? एक लड़का बेताबी से बोला। आता ही होगा। किसी दूसरे ने अपनी पिस्तौल पर गिरफ्त मजबूत करके उसका जायजा लिया। मोहसिन भाई आ गया। एक ने बाइक पर इसी जानिब आते मोहसिन को देखकर कहा, इसीलिए मैं नादर पंचोली भी बाहर निकल आया। उसे देख गैंग के लड़के खामोश हुए। नादर की छोटी छोटी आंखों में चालाकी, मकारी कूट कूट कर भरी हुई थी। जब से हैदर जवान हुआ था उसने मैदान में उतरना छोड़ दिया था। वो फ़कत हुक्म सादित करता था और माल जमा करता था। अरसा हुआ उसने मार धराड़ से किनारा कशी कर ली थी। अब वो फ़कत मार धराड़ करवाने में अपनी मिसाल आप था। चुन चुन कर मारना सालों को। वो गूंजदार आवाज़ में बोला, जी उस्ताद। वो सब यक ज़बान होकर बोले, हमारा एक गिरे तो इनके 4 गिरने चाहिए। अगर वापस आए और हमारी गैंग के मरने वाले ज़्यादा और इनके कम हुए तो तुम सबको मैं अपने हाथों से कब्र में उतारूंगा। जी उस्ताद। इनकी आवाज़ से गली गूंज उठी थी। पंचोली गैंग, नादर ने बुलंद आवाज़ में कहा, जिंदाबाद। लंगड़ा गैंग, मुर्दाबाद। गली इनकी आवाज़ से गूंज रही थी। नादर ने एक तरफ मास्क लगाते मौसम को इशारा करके अपने पास बुलाया। जी उस्ताद। चीता किधर है? उसने हैदर के मुतालिक पूछा। पता नहीं भाई, मैं गया तो किसी औरत को अपने आपकी गाड़ी में बिठा कर ले जा रहा था। मौसम ने बताया। है ये क्या बोल रहा है? वो उलझा और फ़ोन निकालने लगा। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक थी। हाँ, किधर है तू? काल लगते ही वो गुस्से से बोला, आता हूँ भाई, ज़रा सब्र कर। हैदर ने लापरवाही से जवाब दिया। नादर ने गुस्से पर बामुश्किल काबू पाया। वो कोशिश करता था कि हैदर पर गुस्सा ना करे, लेकिन कभी कभार वो लापरवाही की हद कर जाता था। जल्दी आ, नादर ने सख्ती से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वो कॉलेज गेट के बाहर कार में बैठा था। वो आ तो गया था, लेकिन अब नादर की काल और नाराज़गी से वो कुछ खटक गया था। राबिया खातून अंदर बेटी की छुट्टी लेने गई थी, जबकि वो डैशबोर्ड पर उंगलियों से ढोल बजाने में मगन था। तभी कॉलेज गेट से राबिया और खजरा आती दिखाई दी। उसकी निगाहें खजरा के वजूद के गिर्द तवाफ करने लगी, लबों पर मैनी खेज मुस्कुराहट खेलने लगी। वो करीब आए तो हैदर खुद को बेनियाज जाहिर करने लगा। वो गाड़ी में आकर बैठी तो उसने कार स्टार्ट कर दी। खजरा चुपचाप बैठी, कभी के नखियों से गाड़ी चलाते हैदर को देखती तो कभी माँ को देखने लगती। वैसे तुमने बताया नहीं बेटा, तुम्हारे घर में और कौन कौन है? राबिया खातून बेतरकीब से पूछने लगी। मैं हूँ, भाई भाभी हैं, माँ बाप गांव में रहते हैं। उसने शीशे में खजरा पर निगाहें जमा कर कहा। खजरा महसूस कर चुकी थी कि वो इसकी तरफ देख रहा है। वो सटपटाकर खिड़की के पार
देखने लगी। उसके चेहरे पर गैर महसूस सी मुस्कुराहट आने लगी थी, मगर उसने ज़ब्त करके चेहरा मज़ीद मोड़ दिया। अच्छा बेटा सुनो, यही फ्रूट बाज़ार है, ज़रा गाड़ी रोकना, सौदा भी ले लेते हैं। अब जाने कब तक मनूस ये हंगामे करेंगे, बाहर निकलना ही कहाँ होगा। वो फिर कोसने लगी। हैदर ने जब से गहरी सांस लेकर गाड़ी रोक दी। मनूस बुढ़िया, वो जहरे लब बुड़बुड़ाया, चलो आजा सौदा ले। नहीं अम्मी, इतनी धूप से बाहर आप जाकर ले आए, प्लीज़ ज़्यादा देर ना लगाइएगा। खजरा मनमनाई। हैदर दिल ही दिल में इसके इनकार पर खुश हुआ। रबिया खातून सर हिलाकर गाड़ी से निकल गई। हैदर ने ज़रा सी गर्दन घुमाकर एक भरपूर निगाह उसके चेहरे पर डाली और मुस्कुरा दिया। वो भी झुक कर मुस्कुरा दिया और सर झुका लिया। हैदर की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। एज क्या है तुम्हारी? 18 साल की हो गई हूँ, उसने जवाब दिया। वो उंगलियां मरोड़ती जज्बस हो रही थी। उसे हैदर का खुद पर निगाहें जमाना रखना जज कर गया था। कौन सी क्लास में हो? हैदर ने एक और सवाल किया। सेकंड ईयर में, उसने जवाब दिया। बहुत खूबसूरत हो तुम। हैदर की निगाहें उसी पर थी। खजरा की हथेलियां पसीने से भीगने लगी, चेहरा सुर्ख हुआ था। वो घबरा कर रह गई। हैदर ने मैंने खेजी से मुस्कुरा कर रुख सामने की जाने मोड़ लिया। खजरा दुआएं करने लगी कि अम्मी जल्दी वापस लौट आए। वो इस सूरत हाल से घबरा गई थी। आज से पहले किसी ने उससे ऐसा नहीं कहा था। हैदर भी समझ गया था कि ये नई चिड़िया यकसर नादान है। ऐसी मासूमियत को ख़त्म करने का उसे अलग ही लुत्फ़ आता था। वो सामने की जानिब देखता ज़ेरे लब मुस्कुराता रहा, जबकि खजरा अभी तक उसके कहे एक जुमले के ज़ेरे असर थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो अड्डे पर आया तो बाहर गैंग के लड़के तैयार खड़े थे। नादर भी अड्डे के बाहर खड़ा था। उसे सख्त नज़रों से देखकर वो अपनी तरफ बुलाया। वो फौरन नादर के करीब आया। हाँ भाई, क्या लाल टमाटर बने खड़े हो, ज़रा सी देर तो हुई है। वो मुस्कुराया। तुझे मैं बाद में पूछूंगा, अभी तू तो निकल। नादर ने उसे जाने का इशारा किया। वो विक्ट्री का निशान बनाता अपनी बाइक की तरफ आया। बाइक पर बैठने से कबल उसने लड़कों को फायर का इशारा किया तो सब ने एक साथ अपनी बंदूकें लोड की और एक साथ फायर किया। इलाका गोलियों की आवाज़ से गूंजा। परिंदे उड़ते चले गए। मोटरसाइकिलें स्टार्ट हुई और जन से आगे बढ़ती गई। घरों की खिड़कियां जालियों से लोग दबे पीछे उड़ती धूल को देखते रह गए थे। अगले 4 घंटे तक दिलशाद नगर गोलियों की गंग गरज से गूंजता रहा था। जाने कितनी गैंगस्टर जख्मी हुए थे। लंगड़ा गैंग के लोग भी पूरी तरह तैयार थे, तभी कोई कमज़ोर नहीं पड़ा था। दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी। असर की नज़ार हुई तो दोनों जानिब खामोशी छा गई। दिलशाद नगर की तंग भूल भुलैयों सी गलियों में गैंगस्टर छुपे मुख्तलिफ ग्रुप की गलियों पर फायर कर रहे थे। हुकूमत की जानिब से बिल्कुल खामोशी थी। पुलिस नींद की गोलियां खाए सो रही थी। मीडिया पुलिस की गैर मौजूदगी में इस इलाके में दाखिल होने की जरूरत तो दूर सोच भी नहीं सकता था। आखिर 5 घंटे मुसलसल फायरिंग के बाद दोनों ग्रुपों में सन्नाटा छा गया। पंचोली गंग के लड़के अपने जख्मी और मरने वाले 3 लड़कों को पहले ही उठाकर जा चुके थे। जो बाकी बचे थे वो हैदर की हमराही में अड्डे पर वापस लौट आए थे। भाई चीते ने 7 लोगों को हेड शूट किया। मेरे सामने सामने यूं तड़प तड़प कर मरे हैं साले। मौसम फखरी अंदाज में पंचोली को आगाह कर रहा था। राजू ने एक में से 3 बाकियों को पीछे रखा था। हम 6 आगे थे। जुबैर नामी चाफॉम लड़के ने बताया। 11 हमने मारे, हमारे 3 गए हैं, एक ने बताया। कुछ देर में पुलिस आ जाएगी, सारे अपनी अपनी गलियों में जाओ। अजमल, उमर, आयशान की मियतें गुस्ल के बाद इनके घर पहुंचा दी जाएं। सुबह हैदर तो मुआवजा लेकर जाएगा इनके घर। 4 लाख ना? हैदर अपने बाजू पर रुई से दवाई लगाते हुए पूछा। उसके बाजू से गोली छूकर गुजर गई थी। एक गोली कंधे से छूकर गई थी, जबकि एक कान से काफ़ी खून रस चुका था, लेकिन वो यकसा लापरवाह था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही हाल बाकी लड़कों का भी था, सिवाय चंद लड़के जो मरने वालों के करीबी दोस्त थे, उदास बैठे थे। इस बार 5 लाख देंगे, नादर ने कहा। ओके। हैदर अब बुलेट प्रूफ जैकेट निकालते हुए बोला। तू सुबह किधर मर गया था? मोहसिन बता रहा था किसी औरत को गाड़ी में घुमा रहा। वो मैं किसी की मदद कर रहा था। वो खबासत से हंसता हुआ बोला। तू और मदद, बड़ा खुदाई फौजदार है साले। नादर ने उसके बाजू पर मक्का मारा। जख्म है भाई, हैदर बढ़ कर बोला। लड़की का चक्कर होगा ज़रूर। मोहसिन ने दांत निकाले। हैदर ने मैंने खेदी से आंख दबाई और कहका लगाकर हंस दिया।
हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी भी ठीक है। हाँ, हाँ, पता है, इसलिए तो अम्मी आज जल्दी लेने आ गई थी। खज़रा ने रुक कर उस परी की बात सुनी। हाँ, बहुत फारिग हुई है, मेरा तो साँस रुका हुआ था तब से ही, अब जाकर रुकी है। खज़रा ने झुरझुरी लेते हुए बताया, अच्छा तुम्हें पता है मैं घर कैसे आई? खज़रा को हैदर और उसकी बात याद आई। कैसे? परी आदत के मुताबिक फ़ौरन तजस्सुस से बोली, वही हमारी बिल्डिंग वाला लड़का है ना, लंबी हाइट वाला, वो, हाँ वही हैदर। वो दबी दबी हंसी हंसकर बोली, हाँ क्या हुआ उसे? परी ने पूछा। उफ पागल, उसे कुछ नहीं हुआ, अम्मी उसी को लेकर आई थी कॉलेज छुट्टी लेने, उसी की कार पर तो आए। वो पुरजोश थी, उसे बताती जा रही थी। हाय सच्ची, लगता है उसे तू पसंद आ गई है। परी को सोचकर ही लुत्फ आया। मुझे भी यही लगता है। खजरा खिलखिलाकर हंस दी। हैदर का जुमला याद आते ही उसके गाल धक उठे, दिल गुदगुदाया। अच्छा मैं अब फोन रखती हूँ, कल कॉलेज आएंगी आएगी? परी ने फोन रखते रखते पूछा। पता नहीं, अम्मी भेजेंगी तो आऊंगी, वैसे इस इलाके में आकर तो लगता है अब छुट्टियां ही छुट्टियां होंगी। खजरा हंसते हुए बोली, अच्छा चल फोन रखती हूँ। परी ने कहते हुए फोन रखा। खजरा भी फोन लिए कमरे से निकल आई। राबिया खातून किचन में खाना बना रही थी। बात हो गई परी से? लाओ फ़ोन दो, मुझे वकील से बात करनी है, राबिया खातून ने उसे देखते हुए कहा। खजरा खामोशी से फ़ोन काउंटर पर रखा और फ्रिज से सेब निकाल कर धोने लगी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में हैदर का चेहरा और उसकी निगाहें घूम रही थीं। कानों में बार बार इसका कहा जुमला गूंजने लगा, अम्मी वकील से क्या बात करनी है? अचानक उसे याद आया तो माँ से पूछने लगी। जाहिर है घर की ही 1 करोड़ का घर बिका है, 3 हिस्से हुए हैं, हमारे हिस्से में सिर्फ 12 लाख। क्या तुम्हारा बाप हकदार नहीं था क्या? रियाज अली सिर्फ तुम्हारे चाचों के बाप थे। इन खबीसों की वजह से आज इस मनहूस जगह का आकर रहना पड़ रहा है। गोलियां ऐसे चल दी हैं जैसे दिवाली पर पटाखे चल रहे हो। तौबा तौबा, ऊपर से जो दिलशाद नगर की गैंग है ना, पंचोली, उसके सुराग इसी बिल्डिंग में खैर से रहायश पजीर है। मुझे मालूम होता मैं यहाँ कभी घर ना लेती। वो बुरे मिजाज से कहती, दिजकी में चम्मच हिला रही थी। खजरा खामोशी से सेब खाती फिर किसी और ही जहां में पहुंची हुई थी। खजरा फितरन सादा सी थी, कुछ रबिया बेगम की खस सख्त मिजाजी थी कि वो आजकल की तेज तरियों से दूर थी। परी उसकी वाहिद दोस्त थी जो स्कूल के ज़माने से उसके साथ थी। एक वही थी जिससे वो दिल खोल कर बातें किया करती थी। हैदर अपनी फ्लैट के लॉन्च में सोफे पर नीम दराज चरस पी रहा था। लॉन्च में एक नागवार सी बू फैली हुई थी। करीब मेज पर बर्गर पड़ा हुआ था, साथ बियर का कैन था। हैदर बुनैन और जीन्स में मुबलिस था, कंधे और बाजू पर पट्टी बंधी थी, कान पर भी रुई चिपकी हुई थी। वो बिल्कुल पुरसुकून था, कहीं से नहीं लग रहा था कि वो आज मौत की जंग करके आया है। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो आज 7 लोगों का कत्ल करके आया है। पिस्तौल करीब पड़ी थी, दफातर दरवाज़ा बजा। उसने निगाह घड़ी पर डाली, रात के 8 बज रहे थे। उसने आज किसी से मिलने का वादा नहीं किया था। दिल ही दिल में उलझता वो उठा और गेट पर आया। गेट पर बने शीशे के नन्हे से सुराख से झांक कर उसने बाहर देखा। अबे यार, ये कहाँ से टपक गई? वो बुड़बड़ाया और गेट खोल दिया। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप हैदर? वो एक दरमियाने कद की पुरकशिश लड़की थी, आंखों पर नाजुक फ्रेम का चश्मा था। हैदर ने मुंह बनाकर उसे देखा। क्या मैं अंदर आ जाऊं? उसने इजाजत चाही। हैदर गहरी सांस लेता रास्ते से हट गया। वो जूते उतारने लगी। मस्जिद नहीं है ये, ऐसे ही आ जा। हैदर ने उसे जूते उतारते देखा तो बेजारी से बोला और हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझाकर इस ट्रे में फेंक दी। वो लड़की आहिस्तगी से चलती उसके पीछे लॉन्ज में आई। बू महसूस करते ही उसके चेहरे पर नागवारी छा गई। चरस पी रहे थे आप? उसने कहा। हैदर कोई जवाब दिए बगैर सोफे पर बैठा। मैं सुबह से परेशान थी आपके लिए, बहुत दुआएं की कि आप महफूज रहें, आपके हाथ पैर। अरे यार ठीक हूँ मैं, तू यहाँ क्यों आई है? उसने पूछा। आपको देखने आई हूँ, आप तो फ़ोन ही नहीं उठाते मेरा। जैनब अफसुदगी से बोली। हैदर जवाब दिए बगैर फर्श को घूरता रहा। ठीक हूँ मैं, देख लिया, अब जा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? वो नीम होती आंखें उसके चेहरे पर अटकाए पूछने लगी। तेरे साथ क्या किया है? कुछ नहीं, समझी? हैदर ने उसे झड़क दिया। क्या मतलब इस बात का? मेरे साथ? अगर आप चुप, बिल्कुल, मुझे कोई बात नहीं करनी तेरे से, जा तू जा।
हैदर ने उसे जाने का इशारा किया। हैदर, वो भराई हुई आवाज में बोली। हैदर चुपचाप पत्थर बना बैठा रहा। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। आप मत कर ज़ैनब, मत कर मेरे से मोहब्बत। मैं नहीं मानता ये मोहब्बत। मैंने तेरे से बात की पर तू मेरे मतलब की लड़की नहीं है। मैं तुझसे कोई गलत मतलब नहीं निकालना चाहता। मेरे को पता है तू ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ। वो नीम आंखें लिए बोली, हाँ तो लगती है, तू है अच्छी। मेरे को तू बहुत सी लड़कियां अच्छी लगती हैं, तो क्या सबसे शादी कर लूं? वो बेजारी से बोला। आपने कहा था मैं बाकी लड़कियों जैसी नहीं हूँ। हाँ तो नहीं है बोला था। तू मेरे मिजाज की बंदी नहीं है। तेरे मेरे रास्ते अलग हैं। तू जा। तो आप मेरे रास्ते क्यों थे? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो रो दी। अबे ओ छोकरी, मेरे दिमाग को मत लग। नहीं है तेरे से मोहब्बत तो तेरे को बोल रहा हूँ। तू निकल ले। देख ज़ैनब, अभी मैं अच्छे मूड में हूँ, तेरे को बोल रहा हूँ जा, वरना उठाकर बाहर फेंक आऊंगा। वो मामूल के मुताबिक भड़क चुका था। ज़ैनब फूट फूट कर रो दी। हैदर स्मार्ट चेहरा लिए सामने देखता रहा। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई, आंखों में बेबसी और लाचारी थी। और सुन, मेरे जैसे मर्द मोहब्बत नहीं करते। हौस हौस समझती है कि नहीं? हाँ वही जो मर्द मोहब्बत करता है ना, वो निकाह करता है। क्या समझी? तू मेरे लिए रो मत। तू अच्छी लड़की है, तेरे को तेरे जैसा अच्छा लड़का मिलेगा। मर्दों की मीठी मीठी बातों में नहीं आने का, समझी? निकाह करने वाला ही सच्चा आशिक होता है। बाकी मेरे मेरे जैसे अठाई गिर। अब जा, उसने कहते हुए इशारा किया। और उसे समझ आ गई थी। वो चंद पल भीगी आंखों से उसे देखती रही, फिर तेजी से चलती उसके फ्लैट से निकल गई। हैदर लापरवाही से उठा और फ्लैट का गेट बंद करके वापस अपनी जगह पर आ बैठा। इसकी जिंदगी में कोई लड़की मुसलसल नहीं रही थी। दिल भरते ही वो इनको जिंदगी से निकाल देता था, लेकिन ज़ैनब इनमें से नहीं थी जिन्हें वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर चुका था। ज़ैनब ने उससे मोहब्बत की थी, वो जानता था, लेकिन हैदर जैसा शख्स अभी तक मोहब्बत के मीम से भी वाकिफ नहीं था। उसने ज़ैनब के साथ कुछ गलत नहीं किया था, उसे ज़िंदगी से जाने दिया था, क्योंकि वो जानता था वो ऐसी लड़की के काबिल नहीं है, ना वो इस जैसे मर्द के लायक है। वो लॉन्च में नीम दराज खबरें सुन रहा था, जहां आज के गैंग वॉर के मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात फराहम की जा रही थी। हैदर ने चस्प भरी सिरकट का एक आखिरी गहरा कष्ट लिया और उसे एस्ट्रे में उछाल दिया। तब ही दरवाज़ा बजा। हैदर के चेहरे पर नागवारी के तासर छिलके। अब कौन है? वो बुड़बुड़ाता हुआ उठकर गेट के पास आया। दराज से झांका, बाहर मोहसिन खड़ा था। उसने गेट खोल दिया। जख्म कैसे हैं? उसने अंदर दाखिल होते ही पूछा। बेहतर तो इस वक्त बेहतर। तू इस वक्त? हैदर लॉन्च की जानिब आया। हाँ, बाहर नाकाबंदी है, इसलिए इधर चला आया। खाने को कुछ है? मौसम सीधा किचन की जाने मुड़ गया। वो लंगड़ा कर चल रहा था, उसके माथे पर भी पट्टी बंधी हुई थी। ये जख्म आज की लड़ाई में उसे आए थे। हाँ, फ्रिज में पिज़्ज़ा और चिकन रखा है, अवन में डाल ले। हैदर ने लॉन्च में बैठे बैठे बुलंद आवाज में जवाब दिया। मोहसिन फ्रिज खोलकर जायजा लेने लगा। हैदर रिमोट पकड़े चैनल तब्दील कर रहा था। सुन, अभी जब मैं आ रहा था ज़ैनब जा रही थी। वो यहाँ क्यों आई थी? मोहसिन ने पिज़्ज़ा अवन में डाला और फ्रिज से बियर के कैन निकाल कर काउंटर पर धर दिए। हाँ, भेज दिया मैंने, हैदर ने कहा। मोहसिन ने चौंक कर सामने लॉन्च पर नीम दराज हैदर की जानिब देखा, लेकिन कुछ कहने से गुरेज किया। कुछ देर बाद प्लेट में पिज़्ज़ा और बियर के कैन लिए वो लॉन्च में आया। हाँ अब बता, मौसन ने दिलचस्पी से पूछा। ज़ैनब का किस्सा उसे शुरू से बहुत संजीदा लगता था, क्योंकि वो वाहिद लड़की थी जिसे हैदर की फिक्र रहती थी। वो अक्सर मौसन को कॉल करके हैदर की खबर लिया करती और उसे हैदर का ख्याल रखने की ताकीद करती रहती थी। क्या बताऊँ, ना वो मेरे मिजाज में ढल सकती थी, ना मैं उसके। साफ सीधी बात है, मैं बिला वजह के वास्ते नहीं रखता। मेरा काम बनता है तो ठीक, वरना वो अपने रास्ते मैं अपने। हैदर लापरवाही से बोला। मौसम ने तासुफ भरी निगाह उस पर डाली। मोहब्बत करती है तुझसे? मौसम ने उसे शर्म दिलाना चाहिए। हैदर ने हाथ जलाया, लेकिन खामोश रहा। अच्छी लड़की है, तेरे साथ हर हाल में रहना चाहती है। मौसम चाहता था हैदर उसे दिल से अपना ले। देख यार, ये जो मोहब्बतें करता
करता करते हो ना तुम लोग, जैसे तूने रिमशा से की है। अब तू उसका पाबंद है, कोई और पसंद आ जाए तब भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना खुलकर जी सकते हो ना खुलकर मज़े कर सकते हो। माना वो अच्छी लड़की है, मुझे अच्छी भी लगती है, लेकिन आज़ादी मुझे ज़्यादा अजीज़ है। और वैसे भी ये मोहब्बत वगैरह मेरे समझ में नहीं आती। ऐसा भला कैसे मुमकिन है कि एक इंसान से हो जाए तो उसी के होकर रह जाओ। हैदर तंजी अंदाज में बोला, पसंद तो आती हैं लड़कियां, हम खूबसूरत लड़कियों से बातें भी कर लेते हैं, दिल भी बहला लेते हैं, कोई राज़ी हो जाए तो बात आगे भी बढ़ा लेते हैं, लेकिन जो दिल में होती है वो तो रमशा ही है, उसी से है मोहब्बत। मोहब्बत जिससे होती है उसका बनकर रहना पड़ता है। मोहसिन पिज़्ज़ा खाते हुए बोला। हैदर ने मुस्कुराती निगाह उस पर डाली। ये मोहब्बत शख्सियत तुम लोग ही करो, मोहब्बत शब्बत तुम लोग ही करो। मैं ऐसे ही खुश हूँ, जो मेरे साथ रहेगी उसे मेरी बात मानना पड़ेगी। मेरे साथ वो तब तक ही रहेगी जब तक मेरा दिल चाहेगा, जब दिल भर जाएगा वास्ता ख़त्म। और रही जैनब जैसी लड़कियां तो इनको इन जैसे ही मिलने चाहिए। मैंने उससे कहा तो उसने कह दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, तो मैंने कह दिया कि भाई फिर वास्ता भी नहीं रखना, क्या करूँ का वास्ता रख कर। हैदर ने कहकर बेयर का कैन मुंह से लगाया। और ये नया क्या चक्कर है? मोहसिन ने भी बेयर का कैन उठा लिया। बाहर की है, मासूम सी हसीन है आंखें उसकी। हैदर की आंखों में हज़रा का सरापा लहराया। मासूमियत तो तुझे वैसे ही बहुत पसंद है। मोहसिन हंसा। हैदर भी कहका लगाकर हंस दिया और नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, मुझे मासूमियत नहीं, मासूमियत का चोला उतारना पसंद है। ये जो मासूमियत का रूप धारे लड़कियां होती हैं ना, इनको चिकनी चुपड़ी बातों में घुमा कर रखना होता है, और ये मक्खन की तरह पिघलती हुई हमारे हाथों में यूं। हैदर ने हंसते हुए हाथों का प्याला बनाया। और अगर वो ना माने जैनब की तरह? मोहसिन ने सवाल किया। आज तक सिवाय जैनब के कोई लड़की ऐसी नहीं जिससे मैंने मुट्ठी में ना किया हो, और अगर ये भी मेरे मतलब पर नहीं आती तो उसे भी यूं किक मार कर आउट। हैदर ने हवा में लात रसीद की और आंख दबाकर मुस्कुरा दिया। उसे मालूम है कि तू नहीं, जब तक मेरा मतलब पूरा ना हो मैं ये बात छुपा कर रखूंगा, फिर मेरी बला से लग जाए पता, मैं डरता हूँ क्या। हैदर ने बियर का खाली कैन मेज पर रखा। आज तू जोड़ जोड़ दुख रहा है, चल मैं तो चला सोने। हैदर ने ऊँगते हुए कहा और मोहसिन की तरफ देखा। तू अपनी रिक्शा से बातें कर, वैसे बोर नहीं होता तू रोज उसी से घंटों बातें करके? हैदर ने जाते जाते सवाल किया। मोहसिन ने हंसते हुए नफ़ी में गर्दन हिला दी। कमाल है यार। हैदर मुंह बनाता कमरे की जानिब चल दिया।